নমস্কার। আজকের বিষয়টা হচ্ছে, অনেক দিন ধরে শুনছিলাম বা শোনা যাচ্ছিল যে এলআইসি বিক্রি হয়ে গেল বুঝি। এলআইসি কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না। বিক্রি ওই কোম্পানি হয় যে লসে চলতে থাকে। এলআইসি বিক্রি হওয়ার প্রশ্ন নেই। আর একটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কোনো কোম্পানির হাতে যদি 51% শেয়ার থাকে তাহলে মালিকানাটা তার থাকে। যেমন এই মুহূর্তে রিলায়েন্সের আছে। তো এলআইসির কাছে হচ্ছে 95% শেয়ার, যেটা পাবলিকের টাকা রয়েছে, মানে পলিসি হোল্ডারদের টাকা। আর 5% হচ্ছে গভর্নমেন্টের হাতে। তো গভর্নমেন্ট কি বলছে না, 5% শেয়ারে কিছুটা অংশ আইপিও হিসেবে বাজারে নিয়ে আসতে চলেছে। কারণ তার একটা টার্গেট আছে, সেই টার্গেটটাকে সে ভাবছে যে এখান থেকে পূরণ হবে। তো 5% শেয়ারে যে কিছুটা অংশ আইপিও বাজারে নিয়ে আসলে তো শেয়ার হোল্ডাররাও দেখতে পাবে, এলআইসি ব্যালেন্স শিটটা দেখতে পাবে, আগে কত ইনকাম করেছে, এখন কত ইনকাম করছে, সেটা পুরোটাই সামনে চলে আসবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট কিন্তু এটা কখনোই বলেনি যে আমার এলআইসির উপর কোনো গ্যারান্টি থাকছে না। সবর্ণার গ্যারান্টিটা কিন্তু থাকছেই, ঠিক আছে। আরেকটা ব্যাপার হলো যে, যেমন আপনি যদি ব্যাংকে 50 লক্ষ টাকা রাখেন, গভর্নমেন্ট কিন্তু বলেছে আপনার যদি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমি 1 লক্ষ টাকা দেবো, যেটা বর্তমানে বাড়িয়ে 5 লক্ষ টাকা করেছে। এলআইসি কিন্তু প্রথম থেকেই সে গ্যারান্টিটা, গভর্নমেন্টের গ্যারান্টিটা নিয়েই যাচ্ছে। সেটা হলো যে আপনি যে শুধু সাম অ্যাসিওর 5 লাখ টাকা বা 50 লক্ষ টাকা নেন, তাহলে কিন্তু ওই সাম অ্যাসিওরটা আপনি পাবেন। গভর্নমেন্টের এই গ্যারান্টিটা তো আছেই, তাহলে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এলআইসির হাতে 95% শেয়ার, তাহলে দেউলের কোনো প্রশ্নই নেই। দেউলে হতে পারে কোন কোম্পানি? লসে ওই কোম্পানি চলছে, সে যেমন আছে এয়ার ইন্ডিয়া লসে চলছে, ও বিক্রি হতে পারে। রেল লসে চলছে, বিক্রি হতে পারে। কিন্তু এলআইসির প্রশ্ন নেই, কেন এলআইসির হাতে 95% শেয়ার আছে, এটা মনে রাখবেন। তাই আমি কিছু তথ্য দিলাম, সেটা আপনারা দেখুন। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। माना जा रहा है कि एलआईसी लिस्ट होने के बाद मार्केट कैपिटल के मामले में रिलायंस इंडस्ट्री जैसे दिग्गज कंपनी को भी पीछे छोड़ सकती है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने एलआईसी का आईपीओ लाने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक अगले कारोबारी साल की दूसरी छमाही के बाद एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। सरकार की इस पहल से निवेशकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी जिसने भी एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है उन्हें किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना भी एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। 1956 में बनी एलआईसी की कुल संपत्ति इस वक्त करीब 36 लाख करोड़ रुपए की है। एलआईसी अभी तक पूरी तरह से सरकारी कंपनी है और सरकार की 100% हिस्सेदारी है। अब 100% हिस्सेदारी में सरकार एक हिस्सा बेचने के लिए शेयर मार्केट में आईपीओ लाएगी। इस आईपीओ के जरिए मोदी सरकार का 72,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इससे सरकार अपने विनिवेश के लक्ष्य और वित्तीय घाटे को कम करने के लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। Listing of companies on stock exchanges brings discipline, and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. एलआईसी का आईपीओ दशक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। ये भारतीय बाजारों के सऊदी अरामको को लिस्टिंग करने जैसा होगा। इतना ही नहीं, शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद एलआईसी मार्केट कैप के हिसाब से देश की बड़ी कंपनी बन सकती है। एलआईसी का मार्केट कैपिटल 8 से 10 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। एलआईसी की संपत्ति का 10% हिस्सेदारी के बराबर के आईपीओ को भी बाजार के लिए संभालना मुश्किल होगा। सरकार इसका विनिवेश कई चरणों में कर सकती है। ये दशक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सऊदी अरामको को पिछले साल दिसंबर में सऊदी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कराया गया था। कंपनी का वर्तमान मूल्य 117.82 अरब डॉलर है।
भारतीय शेयर बाजार में LIC सालाना औसतन 55 से 65 हजार करोड़ रुपए निवेश करती है। वित्त वर्ष 2018-19 में LIC ने बाजार में 68,621 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। LIC ने शेयरों में निवेश से 23,621 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2018-19 में LIC की कुल निवेश 28,74,000 करोड़ रुपए थे। इसके साथ ही LIC की कुल संपत्ति बढ़कर 31,11,000 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। इस अवधि में प्रीमियम से आयकर बढ़कर 3,37,000 करोड़ रुपए जा पहुंचा। LIC की कुल कमाई 5,60,000 करोड़ रुपए के करीब रही। तमाम बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर LIC का IPO आता है तो ये मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। मौजूदा समय में मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है। तो आईपीओ के माध्यम से कुछ पैसे गवर्नमेंट जनरेट करना चाहती है और गवर्नमेंट अपना शेयर में से कुछ पोर्शन बेचना चाहती है। LIC बिक नहीं रही है। लोगों को लग रहा है कि LIC बिक गई। एयर इंडिया बिक रही है। एयर इंडिया लॉस कर रही है और एयर इंडिया को खरीदने वाला कोई नहीं है। और एयर इंडिया में और LIC में जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर LIC लॉस मेकिंग होती तो उसको बेचना पड़ता, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी होती है। दो कंपनियां हैं, एक है लॉस मेकिंग कंपनी। लॉस मेकिंग कंपनी बिक जाती है और अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी जो है वो IPO लेके आती है। तो LIC का अगर IPO आ रहा है तो उसको पॉजिटिवली दोस्तों लेना है।